So very warm good morning to everyone. I hope you all are enjoying our online classes and regularly you are taking care about your study. So dear student, as you know that in our previous class we discussed about the adaptation that is taking place in polar animals. Then we discussed about the penguin and polar bear. Means what are the basic the adaptations and what are the basic characteristics developed by the organisms who live in a polar region. So in that we discuss about the water, polar bear and discuss about the penguin. But now today's class is all about the adaptation in the desert animals and adaptation in tropical rainforest animals. So first we discuss about the adaptation in the desert animals. So when we are talking about the desert, so the imagination that comes in our mind that the area which is totally covered with the sand and there will be very small vegetation, very small rainfall or very less amount of the water or scarcity of water is taken place. And whatever the vegetation is there that is totally covered with the which have what the this thorny leaves, means leaves is converted into the thorn or thorny bushes is there. So this type the animals go better suit for this type of climatic condition. It create or it you can say that it adapts some the characteristics or develops some basic characteristic by which it can better survive in that climate area. So then whenever कि simply if we are talking about the desert कि जब कभी भी whenever we are talking about the desert, जैसे अपन desert के बारे में बात करते हैं तो suddenly हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है that is the area which is totally covered with the sand. चारों तरफ रेत ही रेत, सैंड ही सैंड है और काफ़ी कम वहाँ पे बरसात होती है, काफ़ी कम पानी होता है, पानी की काफ़ी दिक्कत होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज देयर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वेजिटेशन इज देयर, काफ़ी कम जो है वो वहाँ पे वनस्पतियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं और होते भी है तो कैसे होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होते हैं, बबूल होते हैं, केशिया लाइक दैट, कैक्टस. सो desert means the area which have the high temperature and very little humidity and very little amount of water, means hot and काफ़ी extremely hot. Desert means which have the high temperature, the range of temperature is very high during the daytime. There is a not much vegetation is on which the animals are depends for the feeding, कि काफ़ी कम वहाँ पे vegetation होता है, काफ़ी कम पेड़ पौधे होते हैं जिसके ऊपर बेचारे एनिमल्स डिपेंड होते हैं. वट एवर द लिटिल वेजिटेशन इज प्रेजेंट, और होते भी है कुछ भी, यदि देर विल बी सम वेजिटेशंस लाइक कैक्टस एंड अकेशिया इज देयर, बबूल है, केकर है, खेजड़ी है, ऐसे कुछ वेजिटेशन भी होते हैं. तो उनमें जो होता है कि वो जो प्लांट है वो इसमें मॉडिफाई हो जाता है. द लीव्स मे बी मॉडिफाइड टू द स्पाइन और थॉर्न like cactus and acacia. There is sand all around which is hot in the day and cold at the night. Means day time में काफ़ी जो रेत sand होती है, that is too much hot during the day time and during the night time it's become cold at the night. So means there will be much more difference between the temperature of day and night. Means too much range और यू कैन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है डे टाइम के और नाइट टाइम के टेम्परेचर में. इट कीप्स द ब्लोइंग ऑल द टाइम्स विद द विंड्स, और जो रेत होती है वो पूरे दिन जो है वो विंड के साथ साथ हवा के साथ में उड़ती रहती है, यानी वहाँ पे तूफान या यू कैन से दैट इस टाइप के जो है वो रेत के तूफान आते रहते हैं. हाँ, तो वो एरिया जो होता है वो कैसा होता है, वो डेजर्ट वाला एरिया होता है. सो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं दे एक्वायर्ड सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर बॉडी, या एनिमल्स कह दो या फिर बर्ड्स कह दो या फिर वी कैन से दैट वहाँ के जो वेजिटेशन है उनमें कुछ ऐसे बॉडी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जो उनको वहाँ पे बेस्ट सूटेड करते हैं, उनको वहाँ पे अनुकूलित करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द एडaptation इन द body of camel, means what the main characteristics acquired or developed by the camel which make it most suitable to live in that
area or in that type of a climate. So now you see, everybody see in your textbook page number 86. Here is the some list of in your textbook some list or some adaptations is given about the camel that we see in a water in a desert. First, they have the leathery skins to reduce the water loss because there is already the problem scarcity of water is there. So their skin became water leathery. इनकी जो स्किन होती है वो थिक मोटी होती है और लेदरी होती है, लेदरी टाइप की स्किन होती है जो पानी के लॉस को कम करता है, रिड्यूस करता है. थिक आई लैशेज एंड नॉस्ट्रिल्स हैव देम टू अवॉइड द सैंड ब्लोन्स इनटू द डैम एंड इट हैव थिन दिस थिक आई लैशेज मीन्स जो आई होती है, आई के ऊपर जो है आई लैशेज होते हैं उसके ऊपर एक निकटिंग मेम्ब्रेन इज देयर ताकि उनकी आंखों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो क्योंकि वहाँ पे ऑल डेज द ब्लोइंग ऑफ सैंड इज टेकिंग प्लेस. तो आंखों में सैंड दी जाए उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने ऐसे बॉडी डेवलप किया, कैरेक्टर्स डेवलप किया कि उनकी आंखों के ऊपर एक लेयर होता है जो धूल को मिट्टी को आंखों में जाने से बचाता है. और नॉस्ट्रिल्स भी जो है वो कवर्ड होता है ताकि उनमें जो है वो मिट्टी जो होती है वो उनकी बॉडी में न जाए. They have the padded feet that do not skin in the sink into the sand. Means उनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लैट होते हैं, पैडेड होते हैं ताकि वो इजीली जो है दे कैन वॉक और रन थ्रू द सैंड्स और डेजर्ट कि वो मिट्टी में वो दबे नहीं धस नहीं जाए. तो उसके लिए उनके पैर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, पैडेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ताकि फ्लैट तो वो इजीली जो है वो रेत में चल सकते हैं. दे गल्प अप टू द 50 लीटर्स ऑफ द वाटर एट टाइम स्टोर इन देयर बॉडीज कि एक ही टाइम है एट अ टाइम इट कैन स्टोर द 50 लीटर ऑफ वाटर इन इट्स अ बॉडी एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फर्दर टाइम. सिमिलरली दे स्टोर फैट इन देयर hump and it also कैमल ऑल्सो स्टोर द फैट इन देयर हम क्योंकि उसके बैक पे आपने देखा होगा हम टाइप ऑफ एक्सरसाइज. So the hump is what the storage of the fat. Means fat is storage in a hump जो कुबड़ होता है ना जिसको कुबड़ कहते हैं ना, तो उस हम्प में क्या स्टोर होता है फैट होता है. तो फैट जो है वो फिर जब खाना नहीं मिलता है उस समय उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि वाटर को भी स्टोर करके रखता है बॉडी में और रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है. द माउथ पार्ट्स आर सो डिजाइंड दैट दे कैन अवॉइड द थॉर्न एंड स्टिल ईट अकेशिया लीव्स. मीन्स उसका मुंह भी जो है उस टाइप से मॉडिफाई होता है कि उस तरह से वो डिज़ाइन क्या होता है कि इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन वाटर थॉर्नी बुशेज, कांटेदार झाड़ियों पर डिपेंड होता है. तो वो कांटेदार झाड़ियाँ पेड़ पौधे खाएगा तो उसके मुंह में कांटे नहीं चुभे, इसलिए उसके जो मुंह होता है उनके पार्ट्स जो होते हैं वो इसी टाइप से डिज़ाइन किए होते हैं ताकि उनके मुंह में वो कांटे चुभे नहीं. बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अकेसिया कीकर एंड खेजड़ी है ना, उस पर डिपेंड करता है तो वो उसके कांटे मुंह में नहीं लगे. So according to that, their body parts are designed or developed. Water loss is minimized by the passing less urine or feces. Means water के अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए कम से कम मिनिमाइज जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस फ्रॉम द बॉडी. सो फॉर दैट it release water, the less urine and excreted material in the solid form. Camel have a waterproof skin so as to prevent the loss of water. और उसकी स्किन जो होती है वो वाटरप्रूफ होती है ताकि बॉडी से स्वेटिंग के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में जो है वो लॉस वाटर का लॉस नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वाटर काफ़ी कम है, पानी कम है. इस तरह से यदि बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू वाटर लॉस हो जाएगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी. सो दीज आर द सम द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एडेप्टेशंस डेवलप्ड बाय द कैमल्स which makes best suitable to live in a desert climate. In desert climates, the water needs to be conserved and the heat has to be radiated by having a longer appendages and a smaller bodies. कि इस टाइप के in desert climates, the animals need to conserve water and to protect their body from the scorching heat and radiation. कि सन से आने वाली
धूप से बचने के लिए उनकी बॉडी को कम से कम बॉडी से वाटर का लॉस हो, तो उनकी जो बॉडी होती है having the longer appendages and a small body like the long ears and a small bodies to certain rabbits, जैसे कुछ डेजर्ट फॉक्स होती है, डेजर्ट रैबिट होती है, तो उनके ईयर जो है काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन बॉडी काफ़ी छोटी होती है। यानी कम से कम जो है बॉडी जो है वो सैंड के या सरफेस के कवर में रहे, टच में रहे। जस्ट लाइक यू सी द केस ऑफ कैमल, कैमल के लेग फीट जो काफ़ी बड़े होते हैं, सरफेस से काफ़ी ऊपर उसकी बॉडी होती है ताकि वो सरफेस के टच में नहीं हो। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर नॉक्टर्नल्स। नॉक्टर्नल्स मीन्स द एनिमल्स that are active during the night time, means they can take a rest during the day time because of water, the high scorching sunlight, काफ़ी गर्मी के कारण तो वो डे टाइम में रेस्ट करते हैं और नाइट टाइम में जब ठंडा होता है तब वो बाहर निकलते हैं। उनको नाइट ड्वेलर्स, मोस्टली नाइट ड्वेलर्स होते हैं या उनको कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। ठीक है, तो दिस आर द एडेप्टेशंस टेकिंग प्लेस इन एनिमल्स। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेशन, तो वेजिटेशन जो होता है उसमें जो लीव्स होती है काफ़ी स्मॉल होती है, मॉडिफाई इनटू द स्पाइन एंड कांटों में रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। उनके रूट सिस्टम काफ़ी डेवलप होते हैं, काफ़ी डेप्थ पे होते हैं, गहराई पे होते हैं वाटर के सर्च में, है ना। बॉडी लीव्स या स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, विच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस दैट यू सी इन द केस ऑफ अकेसिया, है ना, कैक्टस और ओकोन्सिया, है ना। तो ये कुछ एडेप्टेशन थे vegetation. Now next we are going to discuss about the adaptation in tropical rainforest. Adaptation in a tropical rainforest. So tropical rainforest is that area, the area or a region which nearby to the equator, which get plenty of rain, means काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे रेनफॉल होता है, बरसात होता है एवरी डे। तो ये बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, एवर ग्रीन जिसको अपन कह सकते हैं। सो नाउ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87, a tropical rainforest climate also known as the equatorial climate area. Why it is called equatorial climate? Because it's nearby to water, the 5 degree north and 5 degree south, that area is covered and that is called a tropical rainforest. यानी नॉर्थ इक्वेटर के जो है इक्वेटर 0 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। सो दिस रीजन इज कॉल्ड वाटर। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो ये जो है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, जो ये वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जस्ट लाइक यू सी अमेज़न, हाँ, कोस्टारिका, ये जो है ब्राज़ीलिया, ये सब जो आते हैं तो ये काफ़ी वेजिटेशन होता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज होती है, मीन्स टू मच बायोडाइवर्सिटी इज occurred here in this area. Okay, so it is usually found along to the equator. Here the days and nights are almost equal in a length throughout the year. यहाँ पे दिन और नाइट जो है almost equal होते हैं। The region receives a very heavy rainfall during the day times and has the high temperature. So यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक जो है कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड होगा और जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है। द वेजिटेशन इज़ वेरी डेंसी एंड द सॉइल इज़ फर्टाइल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोज़ वहाँ पे बरसात होती है तो वहाँ का जो वेजिटेशन होता है, वनस्पतियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और वनस्पति ज़्यादा यानी जंगल ज़्यादा है तो वहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे। ओके, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी में वेराइटीज़ होती है दैट इज़ इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। So therefore these forests are rich in natural resources, or you can say the animal life. Rainforests are populated with the insects, काफ़ी different type के insects होते हैं, काफ़ी टाइप की मकड़ियाँ होती है, आंट चीटियाँ होती है, butterflies, beetles, spiders, ticks, worms, reptiles like snake and lizard, alligators, amphibians like frogs and toads, birds like parrot, tycoons, ना इस टाइप के है ना, जैगुआर है, बंदर है ना,
रेड आइड फ्रॉग है, यानी काफ़ी न्यूमरस डिफरेंट टाइप की स्पीसीज और वैराइटीज़ होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है, चाहे वो बर्ड्स के फॉर्म में देखो, मैमल्स के फॉर्म में देखो, एज इट इज़ इन रेप्टाइल फॉर्म्स. सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज ए competition for food and shelter is too much, or obviously there will be too much number of biodiversity is there, so obviously there will be water the competition for water, food and space and shelter, है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है वहाँ पे, हाँ, वैराइटीज़ है एनिमल्स में और प्लांट्स में, तो कहा क्या होगा वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है. मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, एंड काफ़ी ऐसे एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे सूटेबल बनाते हैं, एडेप्टेट करते हैं कि दे कैन लिव इन एनिमल्स मीन्स आर्बोरियल टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, लाइक monkeys or like other. So now we can see one by one the adaptations. The stick pads on the feet of red-eyed frog help to climb the trees on which red-eyed frog होता है जिसकी आंखें रेड कलर की होती है, तो उसके जो पैर होते हैं ना उसमें स्टिकी पैड होता है, यानी कि चिपचिपा पैड होता है जो किसी भी ट्री पे वो जंप करके वो वहाँ पे क्या कर सकता है, स्टिक कर सकता है, चिपक के वहीं पे रह सकता है, क्योंकि वो मोस्टली इधर उधर क्लाइंब करता रहता है ना. फ्रॉग हेल्प टू क्लाइंब फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्रीज, तो ये एक टाइप का एडेप्टेशन है कि उसके फीट कैसे है, स्टिकी पैड टाइप के, ठीक है, फीट है. टू हेल्प them live on the trees, monkeys have long tails for the grasping branches. मंकी है तो मंकी की लंबी सी पूंछ होती है, लॉन्ग टेल होती है जो बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए और ग्रैस्पिंग के लिए, जस्ट लाइक वी ग्रैब्स एनीथिंग विद अवर हैंड्स. तो बंदर का जो है ना एप्स मंकीज में भी जो है वो जो टेल होती है दैट इज लाइक अ वाटर द ग्रैस्पिंग पार्ट, ग्रैस्पिंग के लिए, ग्रैस्प करने के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हेल्प करता है, बॉडी का बैलेंस भी बनाता है. देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड टू द ब्रांचेस, और उसके पैर और हाथ इस तरह से बने हुए कि इट कैन ईजिली होल्ड द ट्रीज और ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एंड प्लांट. डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट लेवल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लिव्स इन द कैनोपीज. अलग अलग लेवल पे जो है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक यू सी birds lives better in a canopy, means upper leaves or upper part of the trees on the top of the tallest tree. Large animals like jaguar generally lives on the forest floor, but others like owlers, monkeys and sloths lives on the trees. The lion-tailed macaque, also the beard ape, मीन्स दाढ़ी वाला जो बंदर होता है, हाँ, मैकेक्यू जिसको कहते हैं लॉयन टाइल्ड मैकेक्यू, लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया. मोस्टली इंडिया में भी जो वेस्टर्न घाट्स है उस पर भी ये पाया जाता है. तो इट इज़ ए गुड क्लाइंबर्स एंड स्पेंड्स द मेजर पार्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द ट्रीज. तो ये क्या कहते हैं पूरे दिन मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लाइफ का जो कहाँ पे गुजारता है, पेड़ों पे गुजारता है, इधर उधर उछल कूद करके. इट फीड्स मेनली ऑन द फ्रूट्स, जो मोस्टली फ्रूट्स पे डिपेंड्स होता है. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड एज सीड्स, यंग लीव्स, जैसे बीजों के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में, लीव्स या स्टेम्स या फ्लावर या बर्ड, इंसेक्ट, इनको खा के वो अपनी लाइफ को चलाता है. अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन टू द ग्रुप. ये मीन्स उसकी जो पूरी जो इतनी भी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज फुलफिल ऑन द ट्रीज. दैट्स वाई इट इज स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन द ट्री. वेरियस इंसेक्ट आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द रेन फॉरेस्ट. काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट्स होते हैं लाइक स्पाइडर, आंट, यू कैन से देयर इज flies, many is there. As there is a competitions for food, some animals like colorful bird, raccoon, are adapted to get their food like fruits on the branches using their long, large beak. Raccoon are brightly colored in orange and black and can grow to about 8 inches in the length. टैकून जो है, टैकून एक काफ़ी कलरफुल एनिमल्स होता है जो मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है. तो उसकी जो बीक होती है ना वो काफ़ी मोटी होती है, लॉन्ग लार्ज होती है, उसके थ्रू वो अपना फूड
प्राप्त करता है। ऑरेंज कलर का होता है, ब्लैक एंड ऑरेंज और रेड कलर का पार्ट होता है और 8-9 इंच का ये अपने बॉडी उसकी होती है लेंथ में। दे आर नॉट एज हैवी एज दे लुक, यानी जितना दिखता है उतना हैवी नहीं होता है ना। दे हैव स्ट्रॉन्ग फीट एंड टॉयज टू सपोर्ट देयर वेट, और उसके फीट और टॉय जो होते काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते ताकि उसके बॉडी के वेट को वो सहन कर सके। देयर टंग्स are almost finger-like and can grow up 6 inches long. Predators need to be the quick, powerful, smart and sneaky to bring down fast and alert animals like gazelles. यानी predators ऐसे होते हैं जो क्विक, जल्दी, ऐसे पावरफुल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को क्या चकमा दे सके और अपने आप को बॉडी को बचाते हैं। यानी कैमोफ्लेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके बॉडी का जो कलर होता है वो भी बैकग्राउंड के जैसा ही मैच करता है। Many tropical animals have the sensitive hearings, sharp eyesight, thick skin and skin colors that helps them to camouflage by the blending. As I told you, काफ़ी जो mostly the tropical animals have the sensitive, काफ़ी इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं काफ़ी क्या होता है, एक्टिव होते हैं। जस्ट लाइक यू सी आईसाइट, काफ़ी पावरफुल आईसाइट होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, स्किन कलर जो है काफ़ी कलरफुल होता है, हियरिंग सेंसिटिव काफ़ी डेवलप होती है। तो ये जो कलरफुल के स्किन्स जो होती है दैट इज हेल्प फॉर वाटर कैमोफ्लेज बाय द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, यानी उनकी बॉडी का कलर ऐसा होता है कि वो उनके जो पीछे बैकग्राउंड होता है उसी बैकग्राउंड से मैच करता है ताकि वो बड़ी द अदर एनिमल्स कैन डिटेक्ट और आइडेंटिफाई दैम। दिस प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम द प्रेडेटर्स लाइक लॉयंस एंड टाइगर्स। तो ये जो है वो उनको दूसरे एनिमल्स जो होते हैं जैसे लायन है या टाइगर्स है उनसे उनको बचाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट एडेप्टेशन इन द डेजर्ट एनिमल्स एंड देन एडेप्टेशन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड लास्ट वन वी डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन इन एलिफेंट एंड द लायन और टाइगर। Means we discuss some adaptations in the body of an elephant and in the body of a tiger. So forest elephants are adapted to live in a dense forest. कि जो forest elephant होता है वो काफ़ी घने जंगल में रहने वाला होता है, वो वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी बेस्ट सूटेड होता है, एडेप्टेड होता है। They can move around the dense forest very easily, यानी घने जंगल में वो आराम से वो मूव कर सकता है। They use their trunks and noses because of which they can have a strong sense of smell, यानी अपने ट्रंक के थ्रू है ना, सूंड के थ्रू और नोज के थ्रू जो काफ़ी सेंसिटिव होता है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन होते हैं और स्मेल को फाइंड कर लेता है। द ट्रंक्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय them for picking up food like bananas, sugarcane and leafy branches, यानी that trunks help in to catch what are the food items like bananas, leaves, leafy branches, sugar cane, like that. यानी सूंड जो होता है वो उनको खाने में हेल्प करता है। The tusk are a straight modified teeth. These can tear the bark of the trees further than to eat. और जो outer teeth होते हैं tusk, जिसको ना बाहर वाले जो दांत दिखते हैं ना tusk होते हैं, हाँ ठीक है, तो वो जो स्ट्रेट मॉडिफाई होते हैं ताकि वो जो भी बार्क है, छाल जो है या पत्तियाँ उनको चीर फाड़ करके वो आराम से खा सके। लार्ज ईयर्स नॉट ओनली हेल्प देम्स टू हियर इवन अ वेरी सॉफ्ट साउंड बट ऑल्सो हेल्प देम्स टू कीप कूल्ड बाय द रेडिएटिंग एक्सेस बॉडी हीट इन अ हॉटर क्लाइमेट, यानी कि जो उनके बड़े आउटर जो ईयर्स देखते हैं ना, वेरी लार्ज ईयर्स। इफ़ यू सी एलिफेंट के जो है ना कान काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो बड़े कान इसलिए नहीं होते कि वो काफ़ी धीमी सी आवाज़ भी, हाँ फीबल साउंड भी होती है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर लेता है, सिर्फ उसके लिए नहीं होता है। अदर दैन दिस वन वो उसकी बॉडी को जो है वो ठंडा रखने में भी हेल्प करता है, यानी वो अपनी बॉडी को क्या करता है, इट्स हेल्प टू दैम टू कीप कूल देयर बॉडी बाय रेडिएटिंग एक्सेस हीट। हाँ बॉडी की जो हीट को बाहर रेडिएट कर लेता है और उसकी बॉडी को ठंडा रखता है, कूल रखता है। ठीक है, the hard and white ivory of the forest elephant is highly prized by the poachers, but they are difficult to catch in the cover of the rainforest, यानी उसके जो ये आइवरी
जो टिथ होते हैं ना वो काफ़ी ना कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ऐसे जो पोचर्स होते हैं जो अलीगल किलिंग हंटिंग करते हैं उनको वो पकड़ने में भी नहीं देता है, क्योंकि घने जंगल में वो इधर उधर काफ़ी तेज़ निकल जाता है, दौड़ जाता है ना। तो वो भी ना इस तरह से एडेप्टेशन है उसके अंदर। लोजिंग इज़ अनदर थ्रेट टू द फॉरेस्ट एनिमल्स। लोजिंग यानी कि उसके रहने की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसको दिक्कत होती है रहने के लिए, ये उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। टाइगर, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर, तो मोस्टली टाइगर इन इंडिया बंगाल टाइगर जो बंगाल में है, सुंदरबन है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो काफ़ी फेमस और स्पेशल एरिया जो है वो सुटेबल है। सो द बंगाल टाइगर लिव्स इन द सुंदरबंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ चाइना, Siberia and Indonesia. The Bengal tiger is a carnivorous animal. It depends on its boars, wild oxen, deer, monkey and other animals. यानी कि जो जंगली सुअर होते हैं ना उन पे डिपेंड होता है, या वाइल्ड ऑक्सेंस होते हैं, डियर है, मंकी है, इनके ऊपर होता है। ये कैसा है, मांसाहारी जीव है, कार्निवोरस है। द बंगाल टाइगर इज नॉक्टर्नल एंड ग्रेटली फॉसियस प्रीडेटर्स। ये कैसा है, ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है, ये भी है ना, नॉक्टर्नल एनिमल जो नाइट में मोस्टली एक्टिव होते हैं। एंड फर्सी प्रीडेटर, इस काफ़ी खतरनाक शिकारी जो है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स इन आसाम इन इंडिया। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, द पार्ट ऑफ इंडिया लाइक वेस्टर्न घाट्स, आसाम, साउथ ईस्ट, सेंट्रल America and Central Africa, these are the region which is totally covered with water. This is tropical dense forest. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है और आसाम वाला इलाका जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। तो यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है वो कैसा है, हाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट या कैन से द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, सेंट्रल एशिया है ना, साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केनिया, युगांडा और नाइजीरिया। सो दीज आर द कंट्री विच इज ऑक्यूपाइड दिस टाइप ऑफ vegetation or a tropical rain forest or a evergreen forest. Okay, so this is all about this chapter, and anyhow this chapter is finished. Today we discuss the adaptation in desert animals, then tropical rain forest, and we discuss about the elephant and a tiger. So dear student, once you go through this textbook, after that if you have any doubt you can ask me. Okay, so thank you for watching this video once again. Thank you. Have a nice day. Okay.